Drug information centers in hospitals. This is the most important topic for the student of Form D. Drug information centers. I am Mohammad Arshad Yaqub, Assistant Professor, FOP, HU. Purpose. The purpose of Drug Information Center is to provide authentic, individualized, accurate, relevant, and unbiased drug information to the consumer and healthcare professionals regarding medication-related inquiries to the nations for healthcare and drug safety expert by answering their call regarding the all critical problems on drug informations. You see, there is a role and the purpose of drug information, why we can do and we can provide drug information, and why we establish the drug information center. Why? Is to provide authentic, number one, authentic, individualized, यानी ये सही बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि हम इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्यूरेट होनी चाहिए बिल्कुल, रिलेवेंट एंड अनबाइस्ड, रिलेवेंट होनी चाहिए। रिलेवेंट मीन्स जो जैसा क्वेश्चन ऐसे आंसर जो वो पूछना चाहते हैं वैसे ही आंसर देना चाहिए, और अनबाइस्ड, उसमें कोई भी ऐसी कोई चीज़ ना हो जिस पे पता चले कि वो गलत इंफॉर्मेशन है या उसमें कोई ऐसी मिलावट की गई है और या अपनी तरफ से ऐड की गई है। टू द कंज्यूमर, वो कंज्यूमर हो सकते हैं जो कि ड्रग इंफॉर्मेशन को हमसे पूछ रहे हैं, हमसे आस्क करते हैं। एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिगार्डिंग मेडिकेशन रिलेटेड इंक्वायरीज इन द नेशंस। तो ये एक तरह का हमारा एक पर्पस है इसका ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने का। Then you see here, drug information is the provision of written or verbal information about drug and drug therapy in response to a request from other healthcare providing organization, committee, patients, and public community. ड्रग इंफॉर्मेशन एक रिटन वे में एक या फिर वर्बल भी हो सकता है। ड्रग इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि किसी की रिक्वेस्ट पे हम प्रोवाइड करते हैं, और वो पेशेंट्स भी हो सकते हैं, कोई प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए, कमिटीज हो सकती हैं, पब्लिक कम्युनिटी भी हो सकती हैं। Drug information services refer to the activities undertaken by pharmacists in providing information to drug use. The main part of the drug information centers are the pharmacists, or the pharmacists, qualified pharmacists, because they can be provide the good and authentic information to the patient and the other healthcare professionals. Drug Information Center provides in-depth and unbiased source of critical, crucial, and by source of crucial drug information to meet need of the practicing physicians, pharmacists, and other healthcare professionals. So इनकी in depth होनी चाहिए information, और अनबाइस तो हमने पहले से जिक्र किया, अनबाइस सोर्सेज को हम लेंगे, और फार्मासिस्ट या फिजिशियंस और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वो जो मीट करते हैं वो मीट टू मीट।
ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इज general service providers which provide drug information relating to the therapies, pharmacoeconomics, education and research program. ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाने का मकसद ये है कि हम वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करें ड्रग इंफॉर्मेशन की, और जिसका ताल्लुक होगा हमारा ड्रग थेरेपी से हो सकता है, फार्माको प्रॉब्लम से भी हो सकता है, यानी कोई भी बिजनेस रिलेटेड या प्राइस वाइज फार्मेसी या इस तरह से कोई भी ताल्लुक भी हो सकता है, एजुकेशन वाइज हो सकता है, और रिसर्च प्रोग्राम में भी इसका हिस्सा हो सकता है। It's provide unbiased information to healthcare professionals and or patient or consumer, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। Many centers also provide workshop or other form of training to enhance the skill of healthcare professionals. Many center also provide workshop, वर्कशॉप भी कराते हैं, और वर्कशॉप में क्या है, वर्कशॉप एक इंफॉर्मेशन का जरिया है जिसकी मदद से कोई रिसर्च आर्टिकल्स हैं, कोई ड्रग इंफॉर्मेशन है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशन को हम उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ये सेंटर के थ्रू। हम वो सेंटर के काम बता रहे हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स में क्या क्या काम हो रहे हैं। A drug information center is usually a unit located with and or affiliated with a larger organization, यानी drug information center a unit located within and affiliated with a large organization, यानी drug information center होगा कहाँ, वो ऐसी जगह होगा जहाँ पर कोई या तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा, या किसी हॉस्पिटल के अंदर, या किसी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, या ऐसी जगहों में भी ये एक सेंटर बना दिया जाता है। और इन सेंटर में कुछ मैं जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और एक फार्मासिस्ट और वो एक टीम होती है जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स को रन कर रही होती है। ये छोटी सी डायग्राम बनाई है, लेकिन है ड्रग इंफॉर्मेशन की, जैसे इसमें दिखाया गया है कि हेल्थ मेडिकेशन और हेल्थ और इसके क्या क्या काम है, पेशेंट केयर है और हेल्थ से अवेलेबल है, न्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, फार्मास्यूटिकल जो है क्या है, इंटरनेट अवेलेबल है, सर्विसेज हैं। तो एक छोटा सा ड्रग इंफॉर्मेशन की डायग्राम बनाइए। Now classification of information sources. There are actually many classes. Basically, there are three classes: primary, secondary, and tertiary. And obviously, there are sources. You can say it: primary source, secondary source, and tertiary sources. Drug information sources have been traditionally classified in three different categories: primary, secondary, and tertiary. For a more complete descriptions of these categories of information resources, just check this slide, and after that I just explain one more slide. Primary sources. Primary literature. Primary literature consists of clinical research studies and report, both published and unpublished. Not all literature published in a journal is classified as primary literature. For example, review articles, editorial are not primary literature. ये रिव्यू आर्टिकल्स, ये तो उसमें नेक्स्ट उसमें आ जाता है रिव्यू, लेकिन असल में प्राइमरी लिटरेचर क्या है, कंसिस्ट होता है क्लिनिकल रिसर्च। जो रिसर्च हम लोग कर रहे होते हैं, जो कि रिपोर्ट आ रही होती है, और जो पब्लिश हो गई हो या पब्लिश ना भी हुई हो, तो वो तमाम की तमाम प्राइमरी में आ जाएगी। लेकिन इसमें मैंने ये लिख दिया है कि रिव्यू आर्टिकल्स इसमें शामिल नहीं होते, या एडिटोरियल वगैरह इसमें शामिल नहीं होते प्राइमरी में। Secondary sources. Secondary literature refer to the reference that either index of abstract or as abstract the primary literature. Primary literature का जो उनका उसका अगर abstract है,
और उसका जो लिटरेचर जो होगा विद द गोल ऑफ डायरेक्टिंग द यूज़र टू रिलेवेंट प्राइमरी लिटरेचर, यानी प्राइमरी लिटरेचर का एक निचोड़ जो होता है और जो हमने समरीज की बना दी और जो इससे हमने जो पॉइंट्स निकाले वो सेकेंडरी सोर्सेज कहलाएंगे. Tertiary sources provide the information that has been summarized and distilled by the author or editor to provide a quick, easy summary of a topic. क्विक इजी समरी हो रही है और ऑथर जो है या रिसर्चर जो है इंफॉर्मेशन को मज़ीद समराइज करता है और डिस्टिल करता है और अपना क्विक इजी समरी हो, तो ये टर्शरी sources में आ गई. जैसे एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, कंपेंडिया, रिव्यू आर्टिकल्स देखें तो टर्शरी सोर्सेस में आ जाएंगे. रिव्यू आर्टिकल इन जर्नल्स एंड अदर जर्नल इंफॉर्मेशन सच एज may be found on the internet. नेक्स्ट स्लाइड में मैं मज़ीद इसको पॉइंट वाइज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. ये देखिए, प्राइमरी सोर्सेस information is present by the author without any evaluation bias. Second party provide must current information about drugs. Examples जो पहले भी मैं दी कि article published in a journal, for example the British medical journals and others, or thesis. Secondary sources, the original source has been evaluated by the second part other than the publishers, modified and arranged form. Example of that, review articles like Nexus and Midline, like that. Otherwise review articles जो हैं वो टर्शरी में जाएंगे, लेकिन ये जो है ओरिजिनल सोर्स से अगर लेके उसको सेकंड पार्टी जो है उसको पब्लिश करती है तो ये सेकेंडरी सोर्स कहलाएगी. टर्शरी सोर्स, information obtained from primary and secondary source are arranged in the manner to the represent a composite of the available information. यहाँ देखिए मैंने बात बताई कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी को ले सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन ली और उसको अरेंज कर दिया, यानी इस मैनर में अरेंज किया कि बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गया और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई. इसकी एग्जांपल पहले भी दी और ये भी आप देख लीजिए. फार्माकोपियास हैं, रिप्रेजेंट फॉर्म कॉपी, फॉर्मूला बीपी, यूएसपी, आईपी, बीएनएफ, इंसाइक्लोपीडिया और इस तरह की गाइडलाइंस और गाइड बुक्स हैं जो कि टर्शरी सोर्सेज कहलाती हैं. अदर सोर्सेज में इन तीनों के अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जो कि अगर हम इसको लिया जाए तो इसमें वन बाय वन देख लें. दे आर द पब्लिश एंड हॉस्पिटल अबाउट द adverse effect of any drugs, local drugs list, national formularies and hospital formularies, internet, phone calls to manufacturers, government and non-government NGOs, and also to other DIC, यानी दूसरी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ से भी सोर्स हैं या हम ले सकते हैं या हम ले सकते हैं, वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं. नेशनल फार्मूलरीज हैं, हॉस्पिटल फार्मूलरीज हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. फ़ोन कॉल्स के ज़रिए मैन्युफैक्चर से लिए जा सकते हैं जो कि उस मेडिसिन को बना रहे हैं और उससे इंफॉर्मेशन ली जा सकती हैं. तो ये तमाम के तमाम अदर सोर्सेज हो गए. Need of drug information. Why we need of drug information, or why the patient and the other personnel or institute need the drug information. ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आप वन बाय वन देखिए. The number of drug in the international market has increased very much. ये बात ये देखिए कि ज़ाहिर मेडिसिन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ज़ाहिर इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत है. हर एक को याद रखना इतना आसान काम नहीं होता. The newer drugs are generally more potent and selective, and formulary becoming increasingly complex.
कि न्यूअर ड्रग्स आर जनरली मोर पोटेंट एंड सेलेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव। तो नई ड्रग्स आ रही हैं, ज़ाहिर पोटेंट भी बहुत ज़्यादा होती हैं और इसको जो है फॉर्मुलेशंस में भी बहुत मिलाया जा रहा है, उसका कम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। तो ये तमाम के तमाम जो ज़ाहिर बड़ा मुश्किल होता है कि इनको जब इतनी पोटेंट है तो बगैर इंफॉर्मेशन के इसको लिया जाए। The literature on drug has also expanded and cover a wide range of information. अब लिटरेचर भी जो होता है वो ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, एक्सपेंड होता है और वाइड रेंज होती है, तो उसको पढ़ना उतना आसान हर लेमैन के लिए या पेशेंट्स के लिए इतना आसान नहीं होता। तो उसको टू द पॉइंट जो आस्क कर रहा हो, जो क्वेश्चन उसको चाहिए, जो ड्रग इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसी लिहाज से उसको उसी टाइम प्रोवाइड कर दी जाती है। To introduce a new drugs into the practice, the professional need to evaluate a given information. ज़ाहिर न्यू ड्रग्स और प्रैक्टिस के लिए डाली जाती है तो उसके लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है न्यू ड्रग्स के लिए भी। A simple quick reference to a pharmacopoeia or formulary is no longer sufficient. बार बार फार्माकोपिया को और फॉर्मूलरी देखने में इतनी नॉलेज हमें उसमें वहाँ नहीं मिल रही होती, और तो उसके लिए भी दूसरी या तीसरी सोर्सेज देखनी पड़ती हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है, तो ड्रग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है वहाँ पे। Aim and objective of drug information services. The provision of information to health professionals on a specific problem related to the use of the drug as a particular patient. स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा तो ज़ाहिर पेशेंट्स ड्रग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर पेशेंट को तो हम इसके ये हमारा एम होता है कि उसको वो ड्रग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। एंड द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑफिशियल इन गवर्नमेंट एजेंसीज टू ऑप्टिमाइज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बाद ऐसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट एजेंसीज को, वहाँ पे भी हम ये प्रोवाइड करते हैं। द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइन एंड फॉर्मुलरीज, जहाँ पे फॉर्मुलरीज बनानी है, कहीं गाइडलाइन चाहिए, वहाँ भी ड्रग इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस and to provide a guide to the responsible self medications. सेल्फ मेडिकेशन से बचने के लिए या सेल्फ मेडिकेशन को से यानी हमें पेशेंट कंप्लाइंस को दूर करना है, इम्प्रूव करना है और उसको गाइडलाइन देनी है कि वो से मेडिकेशन ना ले, और अगर लेता है तो ये कुछ अगर मेडिकेशन यूज़ कर रहा है डॉक्टर से कहने पे या कहीं, तो उसको उस ड्रग की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। And to develop and participate in continuing education program. Continuing education program ये होता है कि आफ्टर जॉब भी कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं या ड्रग इंफॉर्मेशन में हैं या कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम चलता रहता है, दिन ब दिन नई नई इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो वो प्रोग्राम चलते हैं जो हमें एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने के लिए, उसकी एजुकेशन के प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए हम प्रोग्राम रखते हैं। उसमें भी ड्रग इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मेन ऑब्जेक्ट है और हमारा एम। टू पार्टिसिपेट इन अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम, फॉर्मडीज प्रोग्राम्स हैं या मेडिकल के कोई प्रोग्राम्स हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए भी ड्रग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। The developed educational activities regarding the appropriate use of drug for patients in the community. एजुकेशन एक्टिविटीज चलती रहनी चाहिए कम्युनिटी के अंदर, और ड्रग का यूज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको किस तरह यूज़ करना है ताकि साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हों। To prepare and distribute material or drugs to help personnel in the form of a drug information bulletin and or other media. To prepare and distribute material on drug. इसमें सिंपल सा पॉइंट है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को जो ड्रग इंफॉर्मेशन या बुलेटिन फॉर्म में इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, और मटेरियल के बारे में, जो मटेरियल भी हो सकता है या कोई ड्रग हो सकती है, तो उसको हम आगे प्रोवाइड करेंगे। एंड टू डेवलप एंड
participate in research program, MPhil, PhDs, इस तरह के दूसरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उन प्रोग्राम्स को भी उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी ये ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। ड्रग इंफॉर्मेशन स्किल्स, वो क्या स्किल्स होंगी जो कि फार्मासिस्ट में हो, ताकि और या वो क्वेश्चंस क्या बनेंगे जिसके बेस में हम ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। ड्रग इंफॉर्मेशन शुड अंडरस्टैंड the nature of the questions and should ask all the needed questions to get the ultimate questions. So वो क्या हो सकते हैं? Understand. Most specialized today use the modified systemic approach designed by Host and Kirkwood. दो रिसर्चर थे, इन्होंने कुछ क्वेश्चन डेवलप किए हैं। वो क्वेश्चन एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है अपने फाइल मेंटेन करने के लिए, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में हम अपडेट करने के लिए, या फिर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ड्रग इंफॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए वो क्वेश्चंस ज़रूरी होते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1, सिक्योर डेमोग्राफिक ऑफ द क्वेश्चंस। स्टेप 1 है हमारा, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, हु रिक्वेस्टेड, किसने ये रिक्वेस्ट किया है उसके बारे में, पेशेंट है या कोई कंपनी है या इस तरह का कोई इदारा है जो कि क्वेश्चन करना चाहता है, ड्रग इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे। मेडिकल है या नॉन मेडिकल प्रोफेशनल है, वो पर्सनल है, और एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड पर्सनल है, नेम, ताकि उसको आंसर उसी लिहाज से दिया जाएगा। ज़ाहिर कोई अगर एजुकेटेड है तो ज़ाहिर वो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएंगी जो कि एजुकेशन में यूज़, जो वो आसानी से समझ लें, और अनएजुकेटेड के लिए ज़ाहिर है कि आसान अल्फाज में उसको बयान किया जाएगा। उसका नाम, नेम, लोकेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर, सेल नंबर, जो भी रिक्वेस्टर का होगा वो हम वहाँ पे लिखेंगे। ये बेसिक नॉलेज होगी जो कि हमें फाइलिंग करने के लिए ज़रूरी है। दिस डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स दैट विल बी गिवन। Step number 2, obtain the background information, where the requester had read about the drug, यानी जिसकी इंफॉर्मेशन को वो मालूम करना चाह रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन उसने रिक्वेस्टर ने कहाँ से ली है, वो सवाल क्वेश्चन कहाँ से कर रहा है। इज ही शी टेकिंग मेडिसिन, क्या वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, उनको क्या बीमारी है। इफ ही शी इज अ caregiver want to take medicines, वो जो है कि आप किसी तरह किसको दे रहे हैं, क्या मेडिकेशन दे रहे हैं, या जिनको चाहिए मेडिकेशंस। दिस हेल्प द डिटरमाइन व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइड। स्टेप नंबर 3 में डिटरमाइन एंड कैटेगराइज द अल्टीमेट क्वेश्चंस। हमने डिटरमाइन करना है और उसको कैटेगराइज करना है। Putting the pieces of information together to form ultimate question, and once it has been determined, the next step is to categorize the question. यानी इस क्वेश्चंस को हमने उसको डिटरमाइन करना है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा वो देखना है। स्टेप नंबर 4, डेवलप स्ट्रेटजी एंड कंडक्ट रिसर्च। Strategies should be developed with a typical logarithm with the 3 essential component, टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी लिटरेचर। इनसे हम जो है जो हम जिसका जिक्र पहले किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लिटरेचर के ज़रिए हम जो है वो अपने आंसर के लिए उसके कहीं भी सिलेक्शन करेंगे। स्टेप नंबर 5, परफॉर्म एवल्यूशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। प्रोवाइडर should take time to evaluate the information, analyze and then synthesize it into a good reply. अब ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है, अगर कोई फ़ोन करता है या क्या है, तो अगर वो ड्रग इंफॉर्मेशन पेशेंट है तो उनको उनके लिए ज़्यादा इसके लिए कोई फौरी इंफॉर्मेशन एकदम नहीं होती, तो उसको गैदर करने के लिए और उसको ऑथेंटिक वे में लाने के लिए पेशेंट या फिर वो जो हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है, तो प्रोवाइडर जो होगा, जो आंसर प्रोवाइड कर रहा है, वो जो है इस तरह उसको
आंसर करता है वो उसके लिए टाइम चाहिए, वो टाइम से मांगेंगे, ठीक है। सो स्टेप नंबर 4 तो ये हो गया। स्टेप नंबर 5, परफॉर्म एवोल्यूशन एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो मेरे हमने 3 और 4 5 को देख लिया। 3 में आपने देखा डिटरमाइन एंड कैटेगरीज द अल्टीमेट क्वेश्चंस था। नंबर 4 डेवलप स्ट्रेटजी एंड कंडक्ट रिसर्च थी। एंड जैसे हमने प्राइमरी या सेकेंडरी टर्शियरी जो है इंफॉर्मेशंस वहीं से गेट टुगेदर करके हम प्रोवाइड करते थे। एंड जो 5वां है स्टेप, परफॉर्म एवेल्युएशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ये तमाम के तमाम स्टेप्स स्टेप नंबर 5 में आ जाएंगे। एवेल्युएट करना है, एनालिस करना है, सिंथेसिस करना है। प्रोवाइडर शुड टेक टाइम टू एवेल्युएट, जैसे कि मैंने कहा था इंफॉर्मेशन का इसका जितना भी टाइम लेगा और फिर उसी को एनालाइज करेगा, सिंथेसाइज करेगा और उसका गुड रिप्लाई करेगा। Step number 6, formulate and provide the response. An outline should be established to help formulate a response to the drug request. Formulate and provide response. An outline should be established to help formulate a response to the drug information request. हमें कोई ऐसा फॉर्मुलेट करना, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि कुछ ऐसे अपने क्वेश्चंस बना लिए थे और अपनी इंफॉर्मेशन बनाई थी कि जिसकी बेस में हमने वो इस्टेब्लिश करने हैं, उस आंसर को इस्टेब्लिश करना है और किसी एक फॉर्मुलेशन की मदद से, एंड फिर रिस्पॉन्स भी देना है टू द ड्रग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट का। इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। यानी कोई भी रिपोर्ट या हम जो उसको देना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं रिटर्न वे में, तो उसका इंट्रोडक्शन भी होगा, उसकी एक पूरी बॉडी होगी और लास्ट में उसका कंक्लूजन भी बनाया जाता है उस रिपोर्ट का, ड्रग इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होगी। स्टेप नंबर 7, कंडक्ट फॉलोअप एंड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन भी होगी और उसको फॉलोअप भी रखा जाएगा कि पेशेंट उसमें अमल दरामद कर भी रहा है या जो इंफॉर्मेशन जिसने ली वो यूजफुल है कि नहीं है और उसका आउटपुट क्या हो रहा है। चेकिंग विद द रिक्वेस्टर टू मेक श्योर हिज or her question has been sufficiently and completely answered। यानी हमने जो आंसर दिया है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर से, जो उसको पेशेंट को या रिक्वेस्टर को आंसर मिला है वो सफिशिएंट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, इसको चेक करना है। Of vital importance is to document all the steps taken in this process। जो स्टेप्स इसमें हो सकते हैं वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जनरल गाइडलाइन फॉर रिस्पॉन्स टू ड्रग इंफॉर्मेशन। ड्रग इंफॉर्मेशन जो जिसका हम रिस्पॉन्स करेंगे उसकी क्या जनरल गाइडलाइन है, कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। क्योंकि सबसे पहले टू नॉट गैस, हम गैस नहीं करेंगे कि ये हो सकता है कि इस मेडिसिन को ऐसे भी ले लें, या नॉलेज ना हो। गैस का मतलब है, देखें अगर इंफॉर्मेशन है और फिर अपनी राय देते हैं वो ठीक, लेकिन यानी जो कि पेशेंट को एजुकेट करने के लिए कर रहे हैं ठीक है अगर नॉलेज है, लेकिन गैस नहीं करना कि ये ऐसा भी हो जाएगा या शायद ऐसा हो शायद वैसा हो और ये है तो ऐसा हो जाए, तो ये जो है काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डू नॉट गैस। टेक सेवरल इथिकल इश्यूज इनटू द अकाउंट्स। कुछ इथिकल इश्यूज होते हैं उसको भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि पेशेंट की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि पेशेंट अगर वो नहीं चाहता उसका नाम या कुछ ऐसी कोई चीज़ उसको बताया जाए या पब्लिक किया जाए वो ना हो सके। तो अगर पेशेंट अपने नाम में बताना चाहते तो अब वो पीछे नहीं लगना, पेशेंट की ये देखना है कि इथिकल इश्यूज भी देखने हैं। पेशेंट एंड फिजिशियन रिलेशनशिप कैन नॉट बी ब्रीच। यानी ऐसा नहीं कि आपको फार्मासिस्ट अगर ड्रग इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एक फिजिशियन को की ऐसी कोई और गलती भी हो तो उसको हम ऐसा आया करें कि पेशेंट जो उससे कुछ ऐसा नाराज़ हो जाए या उसके
कुछ ऐसा जो इनका रिलेशन में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ, थोड़ा सा पेशेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस मामले में, या पेशेंट से अलग कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर दोनों को जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर सकते हैं। रिस्पॉन्स इज नॉट नेसेसरी इफ द इंक्वायरर इंटेंड टू मिसयूज और अब्यूज द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइड। अगर ये चांसेस होगा कि भाई कि ये जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसको मिसयूज या अब्यूज़ कर सकता है, तो इस सूरत में हम थोड़ा एहतियात करेंगे और रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन का उसको ऐसे नहीं प्रोवाइड करेंगे अगर मिसयूज या अब्यूज़ होने का खतरा हो। Organize information before attempting to communicate the response to inquirer। हम अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे इससे पहले कि आंसर करें, इससे पहले कि अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट द रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरर। टेयर द रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरर बैकग्राउंड, उसी लिहाज से हम उसका रिस्पॉन्स रखें। जैसे मैंने पहले बताया था कि वो देखा जाएगा, फॉर्म में बताया था कि वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, मेडिकल से ताल्लुक है कि नहीं है, तो उसी लिहाज से उसका आंसर दिया जाएगा उसके बैकग्राउंड देख के। टेल द इंक्वायरर वेयर द इंफॉर्मेशन वॉज फाउंड, और उसको ये भी हम बता देंगे कि इंफॉर्मेशन कहाँ से दी जा रही है। अलर्ट द इंक्वायरर ऑफ द पॉसिबल डिले व्हेन इट्स टेक लॉन्गर देन एंटिसिपेटेड टू आंसर द क्वेश्चन। जो भी इंक्वायरर हम उसको उसके लिहाज से उसको बताएंगे कि हम इसमें कितना टाइम लग सकता है या डिले होने के चांस है इंफॉर्मेशन में, या कलेक्ट करके हम कब आपको उसका आंसर देंगे। आस्क इफ द इंक्वायरर क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय द इंफॉर्मेशन। Inquirer questions, ask if the inquirer questions is answered by the information। तो अगर इंफॉर्मेशन हम इसको दी जा रही है, तो उनसे आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि क्या क्या ये बताइए, यानी एक क्वेश्चन या होता है, उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उस क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और रिपोर्ट ये जो बनती है वो उसमें जो कि जिन चीज़ों का ख्याल रखा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें एक इंट्रोडक्शन होगा, एक पूरी मेन पार्ट बॉडी होगी, और आखिरी में एंड में कंक्लूजन होता है। ये तो ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट है जो कि 3 पार्ट में होती है। रिसर्च द फैक्ट, गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसोर्सेज अवेलेबल। तीनों सोर्सेज से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जमा करके अबाउट द क्वेश्चन ऑफ ओरल रिपोर्ट, फिर हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। लिस्ट द फैक्ट एड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, हम अपनी लिस्ट और फैक्ट के मुताबिक और इंटरेस्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, और जो कि रिपोर्ट को पढ़ने में भी ज़्यादा आसानी है। रिमेंबर दैट द रिलेवेंस डिटेल एंड विविड डिस्क्रिप्शन विल मेक ओरल रिपोर्ट्स मोर इंटरेस्टिंग। जैसे मैं बताया कि रिपोर्ट ऐसा ना हो कि थोड़ी रिपोर्ट पढ़े बोर हो जाए, फिर रिपोर्ट पढ़ने की दिल ही नहीं चाहे, तो रिपोर्ट में इस तरह की चीज़ें रखी जाएगी कि वो इंटरेस्टिंग भी हो और इंफॉर्मेटिव भी होगी। और जो 3 पार्ट जो कि मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी, मेन पार्ट एंड कंक्लूजन, इससे 3 पार्ट्स होते हैं। प्रैक्टिस गिविंग द ओरल रिपोर्ट्स एंड स्पीच क्लियरली एंड डेलिबरेटली। मेक अ फाइनल कॉपी ऑफ रिपोर्ट नोट्स। तो ये इस तरह का है कि हमने स्पीक में अगर देनी है तो इसको समझ में आ रहा हो पेशेंट को कि क्या जो हम इसको समझाना चाह रहे हैं या ड्रग इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उसको समझ में भी आ रहा, क्लियर स्पीच होनी चाहिए। और ओरल रिपोर्ट में साथ साथ एक हार्ड कॉपी फाइनल रिपोर्ट में भी हम इसकी रिपोर्ट बना लेंगे, फाइनल कॉपी बनाएंगे, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो, फिर हम उसको अपनी फाइल में लगाने के लिए, और एक कॉपी अगर वो डिमांड भी करता है तो उसकी कॉपी भी दे देंगे। फार्मासिस्ट स्पेशलिस्ट विद प्रॉपर नॉलेज ऑफ द ड्रग एंड एक्शन एसोसिएट विद इट्स विद एकेडमिक डिग्री। क्या क्या चीज़ें जो है देखें, जो इसके लिए जो स्टाफिंग के लिए हमें ज़रूरी है, स्टाफ जो है
यहाँ का जो सेंटर का जो स्टाफ होगा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का, तो उसमें कौन कौन लोग ज़रूरी होंगे स्टाफ में। तो आप सबसे पहले फार्मासिस्ट का होना, जो कि बहुत स्पेशलिस्ट हो, उसका होना ज़रूरी है। विद प्रॉपर नॉलेज, उसको नॉलेज भी होगी और एक्शन भी लेगा, और उसके पास एकेडमिक डिग्री भी हो, जैसे फार्म डी की डिग्री यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। वही ड्रग इंफॉर्मेशन देने के मिजाज है, काबिल होगा। फार्मेसी टेक्नीशियंस एंड स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट हैं फार्म बी के, तो ड्रग सेंटर में, इंफॉर्मेशन सेंटर में आप लोग का पार्ट ये हो सकता है कि आप हेल्पिंग के तौर पे, फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं वो हेल्पिंग के तौर पे ड्रग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, लिटरेचर को जमा करते हैं, सर्चिंग करते हैं, रिट्रीवल करते हैं डेटा को और रिसोर्सेज को, और अपडेटिंग करेंगे, और फिर वो सब कुछ जमा होने के बाद ये फार्मेसिस्ट इसको फाइनलाइज करेगा। उसके अलावा पीपल ट्रेन इन लाइब्रेरी साइंसेस एंड विद कंप्यूटर नॉलेज, जिसको कंप्यूटर नॉलेज हो या लाइब्रेरी साइंस हो, जो बुक्स का और या जो कलेक्शन है सीरीज़ की, या इस तरह की जो नेट कलेक्शंस है, वेबसाइट्स हैं, उसके लिए लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर नॉलेज वाले पर्सनल भी इसमें हमारे पार्ट होते हैं। दे आर सपोर्टिंग स्टाफ इन DIC, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, फॉर देयर ओन एक्सपर्टीज। सेंटर शुड हैव द स्पेसिफिक आवर्स ऑफ द ऑपरेशन, जैसे 24 आवर्स जो है ये होता है डे एंड नाइट, एंड एडिक्वेट मोस्टली 24 आवर होता है, वरना दिन के टाइम तो दी जा रही होती है। एडिक्वेट टेक्नोलॉजीज रिसोर्सेज, वहाँ कंप्यूटर्स होंगे, फ़ोन्स होंगे, फ़ोन लाइन्स होंगे, फैक्सेस होंगी, ताकि उसके ज़रिए रिस्पॉन्स किया जा सके और उसके ज़रिए कोशिश किए जा सके। द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर शुड हैव द लेटेस्ट पब्लिकेशंस एंड आइडियली पब्लिश अ न्यू लेटर्स और अदर इंफॉर्मेशन अपडेट। ये तो तमाम का तमाम जी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में आपका लेक्चर हो गया। और वैसे तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट मैं इससे पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ कई बार, लेकिन यहाँ थोड़े एक दो पार्ट्स में मैंने सोचा कि स्लाइड ख़त्म होने से पहले रोल बता दूँ। DIC में यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द DIC, शुड बी रेडी टू गो फॉर इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम। ये ऑल द टाइम जो है तैयार रहना चाहिए इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंड द ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट इज at interfere of vast amount knowledge on outside and the persons needing the knowledge on others। सेकंड पॉइंट हो गया। या तीसरा पॉइंट अगर देखें तो शुड प्रोवाइड द प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। तो मैं इतने ही यहाँ तक रखते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट को। आपके ख्याल में कौन कौन से रोल इसके होने चाहिए ये आप सोचें, और फिर इसको इसमें ऐड करें। ये आपके एक तरह का असाइनमेंट भी हो गया। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन DIC। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसमें DIC ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में थोड़ा सा लेक्चर सुनने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर इसी से ताल्लुक़ होगा, वो हम पॉइजन सेंटर के बारे में देंगे। बाज़ इदारे ऐसे होते हैं जिसमें ड्रग इंफॉर्मेशन एंड पॉइजन सेंटर दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं पॉइजन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, और बाज़ इदारे ऐसे होते हैं पॉइजन सेंटर को अलग बना दिया जाता है। खैर ये लेक्चर की वजह से, लेक्चर बड़ा होने की वजह से मैंने पॉइजन को एक अलग करके आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। Thank you very much for listening to this lecture of Drug Information Center. My next lecture will be about the poison center.